अभी कैमरा बंद करके मैंने इतनी अच्छी स्पीच दी, तो मैंने सोचा कैमरा ऑन करके भी ट्राई कर लेते हैं। So this video is about that the people of India, especially the students, are comparing, not the students actually, they are so-called Gen Zs, are comparing between the doctors and all the professions. For example, doctors are compared with engineers, doctors are compared with any other jobs. But don't compare doctors yaar. See, they are telling allopathic doctors are doctors, Ayurvedic doctors are not doctors, homeopathic doctors are not doctors, dentists are not doctors. Who the hell are you to tell this about yaar? Yes, if you have a valid degree, you have a valid qualification for this, then you have the right to speak. But at least forgive the doctors, yaar. Like India में starting salary of a BAMS doctor is about 15 to 20,000, and it cost around OBC to general student 15 to 25 lakhs in private colleges. How we are managing to do this? For example, if I need 25 lakhs for my degree in Ayurveda, 25 lakhs में मेरा MBBS हो जाएगा बाहर से country में. Why I am not going? Because I love my country. I am living here. I want to treat the people of India. But for what we are taking so much stress, for what we are studying each and every formulas, learning, qualifying NEET, giving next to treat people like you? Yeah, see yourself in front of camera and clap for yourself. Wow, what the brilliant work I did. If a doctor is harassed by you by doing this mental traumatizing things, it is very grateful to you, यार. Like if you are making money यार कि यार ठीक है बहुत ज़्यादा आप लोग कमा रहे हो. If you are millionaire or whatever you are making money for whom? For your parents, for your family, right? बुरा वक्त के लिए कमा रहे हो ना. और बुरा वक्त सबको डॉक्टर के सामने ये करने पे मजबूर कर देता है. डॉक्टर साहब हमारे मम्मी पापा को बचा लो, और उन्हीं पे आप ऐसे इंजाम लगा रहे हो कि ये डिग्री ऐसी है, डिग्री वैसी है. अब मैं क्यों चिल्ला रही हूँ यहाँ पे? मुझे कोई शौक नहीं, मैं पागल हूँ नहीं बिल्कुल भी, ठीक है. Why I am doing this? Because I am sitting in front of you well nicely because of doctor, an Ayurvedic doctor. Because of him I am stable right now. I am sitting in front of you because I have coccydynia from last 6 years. डॉक्टर की वजह से मैं आज आपके सामने बैठी हूँ, तो मैं तो उनके पैर छू लूंगी ना, राइट? एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई चूज BAMS. एंड रिसेंटली थोड़े दिन पहले हमारे कुछ मित्र मंडल के मित्र हमसे मिले, कहते कि आयुर्वेदिक डॉक्टर की औकात है झोला छाप डॉक्टर. बोला अच्छा, नीट में अपने मार्क्स कितने आ रहे हो? नीट के एक्चुअल में एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं. मैंने पूछा नीट में बायोलॉजी में कितना स्कोर कर रहे हो तुम? 200. फिजिक्स में 50 मार्क्स. भाई पहले खुद को देख लो ना यार. मैं भले 10 मार्क्स लेके पास हुई हूँ, बट आई एम डूइंग द थिंग ना कि हाँ एक्चुअल वैलिड डिग्री आई एम डूइंग. क्यों किसी को इतना मोरल पुश कर देना है कि यार क्या बताऊं मैं आपको. आफ्टर स्पेंडिंग टू मच मनी इन एलोपैथिक प्रैक्टिस, डूइंग MRI, डूइंग एक्सरेज, मतलब MRI की मशीन में जाते ही वो मौत याद आ गई थी कि क्या हो रहा है मेरे साथ. मैं 18 ईयर्स की हूँ, मेरे साथ क्या हो रहा है. ऐसे हार्ट बीट तेज हो गई थी. सामने मम्मा बैठ के रो रहे थे कि यार बच्ची को क्या हो गया अभी इतनी सी एज में. 6-6, 7-7 महीने नीट की प्रिपरेशन के टाइम पे मेरी फिजियोथेरेपी चली है 2-2, 3-3 घंटे की. उसके बाद भी मुझे रिलीफ नहीं हुआ. उसके बाद भी मैंने ट्राई किया एंड समहाउ आई रीच्ड एट दिस पोजीशन टू गेट ए प्राइवेट BAMS कॉलेज एंड स्टार्ट डूइंग माय डिग्री. एंड येट देयर इज not so much scope, but yeah, you have the power yaar to do practice, to do researches, to do whatever you want. You have to do this ना. किसी भी डिग्री में आप जाओगे, whether it is about teaching, professor, UPSC, NEET, JEE, आपको ही बनना पड़ेगा ना. कोई आके आपके सामने ऐसे थोड़ी कर देगा, प्लेसमेंट थोड़ी रख देगा ना ऐसे. जस्ट कोई स्टार्ट कर रहा है तो एटलीस्ट डोंट पुश दैम डाउन. ओके, एंड at least please forgive the doctors. Don't compare between allopathic practices, BDS, BAMS, MBBS, BHMS along with all this kiosk. Try to understand each and every degree have their own significance, right? हार्ट अटैक आपको आएगा तो आप एलोपैथिक डॉक्टर के पास ही जाओगे. But if you need sudden relief, like for example you have cancer at the first stage, you have the option to go to the Ayurvedic practitioner and they are giving you guaranteed treatment. So what is wrong in it? Like मॉडर्न मेडिसिन स्टार्ट नहीं हुई थी उससे पहले से आयुर्वेदा हमारे इंडिया में, ये हम सब जानते हैं. उसके बाद भी इंडियन होने के बाद इतना उसको शेम फील मत करवाओ यार. एट द एज ऑफ 60 to 70 आप खुद भी आयुर्वेदिक प्रैक्टिसेस पे आने वाले हैं कुछ समय में, बिकॉज पंचकर्मा इज वन ऑफ द मोस्ट वांटेड इन इंडिया फॉर द सीनियर सिटीजन्स एंड इट इज रियली बेनिफिशियल. तो प्लीज एट द टाइम ऑफ COVID-19 ऑल्सो आप लोगों ने गिलोई का पानी सबने पिया ही होगा, राइट? कुछ चीज़ें आप लोग कर ही रहे होंगे. तो प्लीज़ यार ऐसी चीज़ें मत करो. मतलब जो डॉक्टर ऑलरेडी है उनका तो मोरल डाउन मत करो यार. एटलीस्ट दे आर सेविंग योर लाइफ. वो खुद के लिए थोड़ी कुछ कर रहे हैं, है ना. उनको भी पैसा कमाना है, आपको भी पैसा कमाना है. आप पैसा किसके लिए कमा रहे हो वो आप जानो, हम किसके लिए कमाएंगे वो हम जाने. बट हाँ, इन सबको कंपेयर मत करो क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा दिमाग खराब हो जाता है. किसी इंसान की अच्छी भली जिंदगी की वाट लग जाती है. ठीक है, जो कमेंट्स हम पढ़ते हैं ना कि हाँ नीट देने के बाद क्या अच्छा, कौन सा ऑप्शन अच्छा है, BDS ले, BAMS ले, तो जो कमेंट सेक्शन होता है ना वो बहुत कुछ बता देता है. ठीक है,
तो बिफोर जजिंग एनी ऑफ द डिग्री, फर्स्ट यू हैव टू डू द डिग्री एंड देन यू हैव टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस डिग्री कोल्ड एज आयुर्वेदा। ओके, आयुर्वेद एक ऐसी चीज़ है, अगर आपने उसको अच्छे से अपनी जीवन में उतार लिया तो आपका जीवन ही आपके लिए सब कुछ होगा। एंड राइट नाउ यू आर लाइक रेसिंग, वी आर रेसिंग फॉर वॉट एवर द थिंग यार, लाइक आज में तो जी लो यार, लिव इट टुडे एटलीस्ट। वी डोंट नो कि हमारे पास कल है या नहीं है, कल हो ना हो। हाँ, तो बी हैप्पी एंड डोंट कंपेयर डॉक्टर्स। थैंक यू सो मच।